So hi everyone, welcome back to my channel. So in today's video, I am going to answer one of the most popular questions of the students, and that is how to score good marks in exams. So normally we do all kinds of formulas, whether it is in mathematics or it is statistics or it is in economics, accounts, physics, chemistry, anything. We do a number of formulas. So what if I say that there is a formula for getting good marks in exams? So the formula for getting good marks in exams lies in three different things, and that is preparation, presentation, and time management. Trust me, if you excel these three things, nobody could stop you to score good marks in exams. So preparing well in your exams is all about concept clarity. So even if you have cleared all your concepts, the next step that is important is presentation. Because जो तुमने prepare किया है, if you aren't able to make the teacher aware of what you have written, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. जितना ईजी तुम टीचर के लिए कर दोगे ना, उन आंसर्स को देखना जो तुम दिखाना चाहते हो, उतने ईजिली तुम्हें मार्क्स मिलेंगे. और जितना डिफिकल्ट तुम टीचर के लिए करोगे आंसर्स को ढूंढना, उतने ही तुम्हें कम मार्क्स मिलेंगे. सो प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट. Now you have prepared well for your exams, your concepts are clear, you have presented extremely well, but you aren't able to manage your time. And what happens is that कि 10 क्वेश्चंस थे, 10 में से तुम सिर्फ 7 ही अटैम्प्ट कर पाए. वो 7 चाहे तुमने बहुत अच्छे अटैम्प्ट कर लिए, बट स्टिल तुम्हारे 3 रह गए. क्यों? बिकॉज यू weren't able to manage your time. Hence, all these three things are interrelated to each other as well as interdependent upon each other. That is the reason why a proper balance is needed in all these three things. So let's begin with the first aspect, that is preparation. So the very first element of preparing well for your exams is studying smart. Quality over quantity. Now what does it mean? सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास सिलेबस है, सिलेबस तुम्हारा 100% है. Now what most of the students do, either they start covering 100% of syllabus or they cover nothing, that is 0%. But in reality, normally 60 to 70% जो syllabus होता है ना, वो irrelevant होता है. I won't say useless because पढ़ाई कभी useless नहीं होती. वो irrelevant होता है from the perspective of your exams. और जो 30 to 40% पार्ट होता है ना, तो हमारे ओवरऑल सिलेबस का वो ही इम्पॉर्टेंट होता है. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट्स वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडिंग दिस. हेंस ट्राई टू स्टडी स्मार्ट, फोकसिंग ओनली ऑन द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ द क्वेश्चन स्टैंड्स, हाउ डू आई नो दैट कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं? सिंपल सा एग्जाम्पल है. पीपल विल से रेफर सैम्पल पेपर्स. People will say solve previous year question papers. People will say a lot many things, ठीक है? They will ask you to buy guides and everything of that sort. But still, ये तीनों चीज़ें absolutely सही है ना, absolutely workable है. But the best way जिसके थ्रू तुम important topics या important questions जान सकते हो, वो है तुम्हारे क्लास टेस्ट्स. नॉर्मल सी बात है, कोई भी टीचर क्लास टेस्ट में एक अनइम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डालेगा. वो उन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन डालेंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो उन्हीं टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन डालेंगे जो इंपॉर्टेंट है. सो इवन इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर योर क्लास टेस्ट, या फिर तुम्हारा मन नहीं है देने का, या फिर वट एवर द रीज़न बी, डू नॉट मिस योर क्लास टेस्ट, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे कि तुम पढ़ाई के साथ साथ अपना सिलेबस करते हुए ये जान सकते हो कि इम्पॉर्टेंट क्या है. तुम्हें कुछ नहीं आता क्लास टेस्ट में, कोई बात नहीं है, बट कुछ तो लिखो ताकि तुम्हें इतना तो हो कि यार ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं इसको पढ़ लूँगी या मुझे ये पढ़ के आना चाहिए. टीचर्स कैन नॉट डायरेक्टली टेल यू व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट. ठीक है, टीचर्स कैन नॉट डायरेक्टली टेल यू कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं. हेंस टीचर्स के पास यही एक तरीका होता है तुम्हें बताने का कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं. सो डोंट एवर मिस योर क्लास टेस्ट. उसके अलावा अगेन या सैम्पल पेपर्स, रेफरिंग सैम्पल पेपर्स, रेफरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, रेफरिंग टू ऑल दोज गाइड्स आर अ प्लस. जितना ज़्यादा तुम अपनी बाउंड्रीज, अपने हॉराइजन्स इंक्रीज करोगे रिगार्डिंग कंटेंट, उतना ज़्यादा तुम्हें इंपॉर्टेंट पता लगेगा और उतना ज़्यादा तुम प्रोडक्टिवली अपना टाइम यूटिलाइज कर पाओगे सिर्फ उन चीज़ों में जो इम्पॉर्टेंट है. So this was the first step.
Next is creating a mental timetable. So it means create a schedule. As in, अगर मेरे पास 24 दिन है पढ़ने के लिए और मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं एक ऐसा टाइम टेबल माइंड में या फिर कहीं साइड पे क्रिएट कर लूँ जिसमें मुझे पता लगे कि ये मैंने 6 सब्जेक्ट्स जो है वो कैसे कवर करनी है. लेट्स से ABCDEF 6 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट ABCDE एंड F. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि 6 4 24, तो मुझे 4 दिन सबको देने हैं. नो, तुम ये देखो कि इन 6 सब्जेक्ट्स में तुम्हारे लिए कौन से डिफ़िकल्ट हैं, कौन से इजी हैं और कौन से मिडिल लेवल पे चल रहे हैं. इन तीनों ग्रेड्स में डिफ़ाइन कर दो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, कि कौन सा तुम्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, कौन सा तुम्हें बहुत ईजी लगता है एंड कौन सा तुम्हें मॉडरेट लगता है. उसके हिसाब से दिन डिवाइड करो. जिसको 8 दिन देने की ज़रूरत है उसको 8 दो, जिसको 1 देने की ज़रूरत है उसको 1 दो, जिसको 2 देने की ज़रूरत है उसको 2 दो. डू इट दिस वे, क्रिएट अ मेंटल टाइम टेबल. इससे क्या होगा, तुम्हें पता होगा कि मेरे पास 24 दिन है, ठीक है, और मैंने इन 24 दिन को कैसे परफेक्टली यूटिलाइज करने हैं ताकि मेरा सिलेबस भी ख़त्म हो जाए, मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए और सब कुछ मैं ईजिली कर पाऊँ. सो ऑलवेज क्रिएट अ मेंटल टाइम टेबल. साइड पे कहीं पे भी अपना पढ़ाई शुरू करने से पहले ना हमेशा 10 या 15 मिनट सिर्फ ये स्ट्रैटेजी बनाने में लगाओ कि तुम एक्चुअल में पढ़ोगे कैसे, कितने दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे. नेक्स्ट इज अंडरलाइन, हाईलाइट और मेक नोट्स. कीप इट सब्जेक्टिव. नाउ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल रिकमेंडिंग कि नोट्स बनाओ, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन नोट्स इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन. बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नोट्स से पढ़ना पसंद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं. रीज़न बींग आई नो दैट आई कॉन्ट स्टडी फ्रॉम नोट्स, आई कैन ओनली स्टडी डायरेक्टली फ्रॉम द बुक्स. सो इट डज नॉट मैटर if you want to make notes or if you do not want to make notes, depending upon your interest. But always try to underline and highlight. और अगर तुम नोट्स भी बना रहे हो ना, तो नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि बुक में से चीज़ें कॉपी करके तुमने कॉपी में लिख दी. नो, नोट्स मीन सिर्फ वो चीज़ें लिखना जो तुम्हारे कीवर्ड्स हैं, वो चीज़ें लिखना जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर तुमने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी कॉमर्स के रिगार्डिंग, यू वुड हैव सीन दैट आई नेवर राइट फुल सेंटेंसेस. किसी की भी मीनिंग्स में मैं सबसे पहले मीनिंग को तोड़ती हूँ वर्ड्स में, हर एक एस्पेक्ट का मीनिंग या फिर जो कीवर्ड है वो बताती हूँ और उसको जोड़ के एक मीनिंग क्रिएट कर देती हूँ ऑन द स्पॉट. सो दैट इज़ व्हाट द रेलेवेंस ऑफ नोट्स इज, कि तुमने सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं ताकि तुम पेपर में जाके उन सब चीज़ों को मिक्सअप करके या एड ऑन करके अपनी मीनिंग्स या फिर सेंटेंसेस फॉर्मुलेट कर पाओ. Learning is not a solution, but remembering the keywords is. Underline और highlight. Underlining and highlighting is very important. जितना ज़्यादा तुम underline करोगे important चीज़ों को, जितना ज़्यादा तुम highlight करोगे important चीज़ों को, उतना तुम्हारा टाइम सेव होगा. For example, ये मेरी मास्टर्स की बुक है एक. इसमें मैंने ऑलरेडी, जब मैं पढ़ती होती थी उसमें मैंने ऑलरेडी चीज़ें हाईलाइट वगैरह करके रखी हुई हैं ना. हाईलाइट डज नॉट मीन कि हाईलाइटर से ही करना है, तुम सिंपल बॉल पेन से भी कर लो, पेंसिल से कर लो, जो भी है. तो मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे छोटे से नोट्स बना लिए. इवन दो द राइटिंग इज़ नॉट लेजिबल फॉर सम पीपल, बट फॉर मी इट इज़ एवरीथिंग. तो हमेशा अपने नोट्स सब्जेक्टिव रखो, किसी और के नोट्स पे डिपेंड मत करो, बिकॉज किसी और के नोट्स उस अंडरस्टैंडिंग से नहीं समझ आएंगे तुम्हें जितने तुम्हें अपने आएंगे. तो ये मैंने अपने नोट्स बना लिए. जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी या मेन ध्यान देने वाली चीज़ें थी मैंने उनको सर्कल कर दिया. जो भी ध्यान देने वाली चीज़ें थी मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया ताकि जब मैं वंस ओवर लूँ मैं जल्दी से इनको देख लूँ. यहाँ पे मैंने स्टार्स बनाए हुए हैं काफ़ी जगह पे, इस पे बनाया हुआ है, इस पे बनाया हुआ है. इसका मतलब ये है दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन दिस पर्टिकुलर लाइन. तो अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग एंड मेकिंग नोट्स, इन सब का रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि तुम्हें कीवर्ड्स पता लग जाएं और कंटेंट पता लगे. सो दिस वाज योर थर्ड ट्रिक. द फोर्थ इज कीप टारगेट्स, चैलेंज योरसेल्फ. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कीपिंग टारगेट्स एंड चैलेंजिंग योरसेल्फ, इट मीन्स दैट कि तुमने स्केड्यूल तो बना लिया कि मैं लेट्स से 4 दिन में अकाउंट्स करूँगी या फिर फिज़िक्स करूँगी या साइकोलॉजी करूँगी. ये तो डे वाइज तुमने एक स्केड्यूल बना लिया. बट इन 4 दिनों में तुम्हारे पास 1 2 3 4 दिन है, तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं एक दिन में 5 चैप्टर्स कर रही हूँ, जस्ट सपोज. और इन 5 चैप्टर्स को भी तुमने आगे डिवाइड कर लिया कि मैंने एक चैप्टर को 2 घंटे लगाने हैं, एक को सिर्फ 1 ही लगाना है, एक को सिर्फ 30 मिनट लगाने हैं, एक को 1.5 घंटा लगाना है.
ठीक है। सो दिस इज़ वॉट टारगेट इज़ ऑल अबाउट, कि तुमने एक दिन में जो करना है ना उसके रिगार्डिंग भी तुम एक टारगेट सेट कर लो कि यार मेरा ये चैप्टर जो है ना ये आधे घंटे में हो जाना चाहिए, सो दैट बाय दी 35th मिनट आई एम एबल टू स्टार्ट अनदर चैप्टर। तो हमेशा जितना तुम्हारा टारगेट तुम्हें लगता है कि इतने टाइम में कंप्लीट कर पाओगे, लेट्स से 45 मिनट्स, तो हमेशा 10-15 मिनट का मार्जिन रखो, सो दैट इससे क्या होगा, पहली बात तुम ओवरबर्डन फील नहीं करोगे, ना तुम्हें गिल्ट आएगी कि यार मैंने 45 मिनट सोचा था, मेरा 45 में नहीं हुआ, मेरा तो 50-55 में हुआ है, ठीक है। तो तुम ओवरबर्डन नहीं फील करोगे, तुम प्रेशर नहीं फील करोगे, तुम रिलैक्स तरीके से करोगे, और सबसे बड़ी बात तुम सिलेबस भी पूरा कर लोगे विद कॉन्सेंट्रेशन। तो हमेशा टारगेट्स के साथ पढ़ो कि यार मेरा ये चीज़ इतने टाइम में हो जाना चाहिए। 5th इज़ बी अ टीचर। कोशिश करो कि तुम ऐसे पढ़ो जैसे कि तुमने किसी और को समझाना हो। जब तुम किसी और को समझाने के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे ना तो हमेशा तुम ध्यान से पढ़ पाओगे, बिकॉज तुम्हें पता है दैट यू आर गोइंग टू टीच दिस टू समवन एल्स। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ टीचर, दिस वे योर कंसंट्रेशन, योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज योर इंटरेस्ट विल बी much more than normal. 6th is ignore the noise. Now when I talk about noise, so this is not the sound wali noise. This noise is all about जो तुम्हारी distractions हैं. Distractions in the sense, हो सकता है तुम्हारे friends या peers ऐसे हों जो कह रहे हों कि छोड़ पड़ा, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, और why are you studying for 3 days, it's better कि तू एक दिन में पढ़, don't go for that. और हो सकता है कि बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड्स या पेयर्स ये हो कि यार मेरा चैप्टर तो ये 5 दिन में होगा, तो 3 दिन में कैसे कर रही है या कर रहा है। सो एवरी पर्सन हैव देयर ओन प्रायोरिटीज़, हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस, हैव देयर ओन इंटरेस्ट, हैव देयर ओन पेस। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर पेस एंड इग्नोर द नॉइज। नेक्स्ट इज कीप योर फ़ोन अवे। कीप योर फ़ोन अवे इन द सेंस कि ठीक है, अपने आप को एक टाइम दे दो कि यार मैंने इतना टाइम फ़ोन चलाना है, चला लिया, उसके बाद अपना फ़ोन आइदर कहीं साइड पे रख दो। आई स्टिल रिमेंबर माई ग्रेजुएशन डेज व्हेन आई वॉज गेटिंग वेरी एडिक्टेड टू फ़ोन ड्यूरिंग माई एग्जाम्स। तो मैं क्या करती थी, आइदर अपने भाई के कमरे में फ़ोन रख देती थी, या फिर आई यूज़ टू कीप माई फ़ोन इन अलमीरा, सो दैट ना मेरी नज़रों के सामने होएगा ना मैं यूज़ करूँगी। सो यू नीड टू मेंटेन एंड प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। दिस थिंग इज़ वेरी अंडररेटेड बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट एवर थिंक कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, डोंट एवर थिंक दैट यू हैव ऑलरेडी अ टॉपर इन क्लास जो बहुत पढ़ता है या पढ़ती है, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। डोंट एवर थिंक कि तुम्हें ये चैप्टर नहीं आता और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो तुम कर नहीं पाओगे। सो देर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव थाट्स दैट विल लिंगर इन योर माइंड, बट डोंट गो फॉर दैट। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज़ एंड बिलीव इन द पावर यू एंड योर राइटिंग होल्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर ब्रेक्स इन्हांस प्रोडक्टिविटी। अगर एक बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है और अगर एक बच्चा 6 घंटे पढ़ रहा है तो तुम कहोगे कि यार 10 घंटे पढ़ने वाला बच्चा ही बेटर है बिकॉज 10 घंटे पढ़ रहा है। बट इफ़ यू लुक डीपर, अगर ये बच्चा 10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी उतना ही सिलेबस कर रहा है जो 6 घंटे में हो सकता है, तो जो ये 4 घंटे इसने करे हैं ना वो वेस्टेज है। बट अगर ये 6 घंटे पढ़ने वाला बच्चा उतना ही सिलेबस कर रहा है जो 6 घंटे में होना चाहिए, this is basically an investment in time and this is productivity. Productivity is all about input and output. मेरा इनपुट 6 घंटे का है बट मैं आउटपुट भी 6 घंटे के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। इधर मेरा इनपुट है 10 घंटे का बट मैं आउटपुट 6 घंटे का निकाल रही हूँ। सो इट डज नॉट मैटर कि तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो। देयर इज़ नो रूल कि दिन में 12 घंटे पढ़ के ही तुम टॉप कर सकते हो या दिन में तुम 4 घंटे पढ़ के ही टॉप कर सकते हो। The magic lies in how productive you are and how productively you are using your time. तो अगर तुम 12 घंटे पढ़ने के बाद भी सिर्फ 6 घंटे का आउटपुट निकाल रहे हो, सो इट्स नॉट बेनिफिशियल। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेक्स लेना। कोशिश करो कि हर पौने 1 घंटे के बाद 5-7 मिनट का ब्रेक लो ताकि तुम्हारे माइंड को रेस्ट मिले, ठीक है। 10 घंटे अपने दिमाग में चीज़ें भरी जाओगे, इट्स अल्टीमेटली गोइंग टू मग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड एंड हेंस you will not be able to remember anything. So give your brain some time, relax yourself, go to terrace, have a walk, eat well and then continue it.
अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तुम्हारे बार बार ट्राई करने के बाद ही, सो दैट इज़ ओनली बिकॉज तुम एंशियस हो रहे हो। तो बेटर है कि तुम 10 मिनट का ब्रेक लो, माइंड को फ्रेश करो, उस टॉपिक को फॉर द टाइम छोड़ दो और कोई ऐसा टॉपिक करो जो तुम्हें आता है। जब तुम्हारा मन थोड़ा सा एट पीस हो जाएगा, उस टाइम पे उस टॉपिक को दोबारा उठाओ। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। If you want to excel in your exams, if you want to get good marks in your exams, then you have to practice. Numericals है, until and unless you don't solve them, until and unless you don't practice them, you're not going to excel in the art of solving numericals, be it physics, be it chemistry, be it accountancy or economics. Until and unless you do not practice the numericals, you aren't going to excel it. If it is about theory, until and unless you're not going to revise the theory, you aren't going to excel or get good marks in exam. So next is study in isolation or study in a group. So here what I mean to say is that you need to set your priorities, that you want to study in isolation or you're comfortable studying in a group. So if you're comfortable studying in a group, then you need to prioritize the fact that you're studying together with the aim to make the other person as well as yourself understand the whole concept together and unitedly. And if you decide to study in isolation, then it does not mean that you are here watching television, because obviously अगर तुम टीवी देखते देखते या सॉन्ग सुनते सुनते या और चीज़ें करते करते पढ़ रहे हो, then एग्ज़ाम के टाइम पे इवन दो तुम्हें जो पढ़ा है वो याद रहे ना रहे, बट यू आर गोइंग टू, बट द थिंग्स जो तुम देख रहे थे उस टाइम टीवी पे वो ज़रूर याद रहेगा. सो बेटर यूटिलाइज योर टाइम एंड डिसाइड your preference, your comfort and your priority, that you want to study in isolation or you want to study in a group. If you are forced into studying in a group when you're not comfortable, learn the art to say no. Find ways to learn things that has to be learned. मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता है कि हमें काइंड ऑफ क्रैम करनी पड़ेंगी या फिर लर्न करनी पड़ेंगी, जिनमें समझ नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल डेट्स, फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री का नाम. आई स्टिल रिमेंबर माई केमिस्ट्री टीचर. ठीक है, हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे अभी भी करते हो. तो वो जो होता नहीं है टेबल, एटॉमिक टेबल कहते हैं जिस, तो हम बच्चों को ना याद नहीं हो रहा था. तो मैम ने क्या किया, मैम ने हमें उसका फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का ना एक सॉन्ग बना के बता दिया कि ये सॉन्ग याद कर लो, उससे तुम्हारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे. तो मुझे अभी तक वो एलिमेंट्स याद हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, एंड दैट सॉन्ग वाज हेलो हाई लिली बेबी, कैन नो फिल नेवर, नेहा मेगा अलीना सिंह, परफेक्ट सॉन्ग, क्लियर आफ्टर किलिंग कैट. तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हो गए, मतलब सिर्फ शॉर्ट फॉर्म, जैसे हेलो का एच, हाई का एच ही. तो हमें सॉन्ग याद है, इस करके हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स भी याद है. सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अपने आप से तरीके निकालो उन चीज़ों को याद रखने के जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी. Next is have a once over even if you have revised that subject once. Mix and match. मतलब कि एक ही सब्जेक्ट पे मत टिके रहो, हमेशा मिक्स एंड मैच करते रहो. कभी ये उठा लिया, कभी वो उठा लिया, 4 दिन इसको दे दिए, 2 दिन उसको दे दिए. अब देखो, सपोज करो मैंने 4 दिन लगाए अपने अकाउंटेंसी पे और अगले 3 दिन मैं सोच रही हूँ कि मैं लगाऊँ इकोनॉमिक्स पे. तो अकाउंटेंसी पे लगा दिए, ये डन है. बट जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ ना, तो कोशिश किया करो कि कुछ टाइम के लिए ना इकोनॉमिक्स छोड़ के सिर्फ 10 या 15 मिनट अकाउंट्स की बुक खोल के ना ऊपर ऊपर से सब कुछ देख लो. अब इसका मतलब ये नहीं कि तुमने फुल फ्लेज टाइम देना है, सिर्फ 10 या 15 मिनट लगाओ. अपने आप को ये सोचने का मौका ना दो कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं है. सिंपल एक वंस ओवर लो ऊपर ऊपर से, ताकि तुम्हें पता लगे वर्ड्स के बारे में कि अच्छा ये भी वर्ड था, ये भी चीज़ थी, ये भी टॉपिक था, सो दैट तुम्हारे माइंड में सारी चीज़ें फ्रेश रहे. बिकॉज अकाउंटेंसी तुमने 4 दिन कर ली, फिर तुमने इकोनॉमिक्स 3 दिन कर ली, फिर तुमने 5 दिन कोई और सब्जेक्ट कर लिया, फिर 3 दिन, तो बहुत ज़्यादा गैप पड़ जाएगा. तो इस गैप को ना रिड्यूस करने के लिए मिक्स एंड मैच करते रहो, और जो सब्जेक्ट तुम ऑलरेडी कर रहे हो ना उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ के ना सिर्फ 10 या 15 मिनट कोई रैंडम सब्जेक्ट उठा लो जो तुमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है, ताकि तुम्हारे माइंड में चीज़ें फ्रेश हों. नेक्स्ट इज़ डू नॉट क्रैम. क्रैम वाली चीज़ें तुम्हें टाइमली पीरियड में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए याद रहेंगी, लाइफ लॉन्ग याद नहीं रहेंगी. बट जो बेसिक्स हैं अगर तुम्हें वो याद रह गए ना, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व और think of anything. So always focus on your basics and do not cram. At least cramming कहाँ करो, जहाँ पे dates हैं, जहाँ पे countries के नाम याद रखने वाले. तो जो चीज़ें cram करने वाली हैं उस पे करो, जो basics हैं उनको मत करो.
नेक्स्ट इज राइट ऑल द फॉर्मूलाज एट वन प्लेस। तो इवन दो तुम नोट्स नहीं बना रहे हो थेरेटिकल चीज़ों के लिए, बट कोशिश करो कि फॉर्मूलाज जो है ना वो हमेशा तुम किसी सेपरेट नोटबुक में लिख लो, ताकि तुम्हें एक पर्टिकुलर जगह मिल जाए जिसमें तुम्हें अच्छा दिमाग में आया मीन का फॉर्मूला क्या है, तो तुमने जल्दी से नोटबुक खोली। इतनी बुक में इतने पेजेस में फॉर्मूला देखना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट अगर तुम्हारे पास एक सेपरेट नोटबुक होगी जिसमें तुमने नीटली अपने फॉर्मूलाज लिखे होंगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिकैप्चुलेट एंड रिवाइज देम। और एक लिंक भी बनता रहेगा कि अच्छा मीन था, मीन के बाद मोड आ रहा है, मोड के बाद ये आ रहा है, वो आ रहा है, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू। नेक्स्ट इज रीड, रिसाइट एंड रिवाइज। अब कोई भी क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है, जो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए ये 3 आवर्स फॉलो होते हैं। पहले रीड करो, ध्यान से रीड करो, ध्यान से रीड करने के बाद उसको रिवाइज करो, डिसाइड करो, मतलब कि बोल के पढ़ो या फिर दोबारा पढ़ो उसको। जब हो जाए तो उसको रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करो कि दिमाग में ये रखने की कोशिश करो कि अच्छा अब मैंने 2 बार ही पढ़ लिया, मेरे को इसमें क्या समझ में आए। ऐसे ये स्टेप्स को ना 3 स्टेप्स को रिपीट करते जाओ उसी क्वेश्चन के साथ जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है। एंड इन अ फ्यू ट्रायल्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द कीवर्ड्स रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। और अगर तुम्हें कीवर्ड्स याद रह गए तो ऑटोमेटिकली यू आर एबल टू फ्रेम द आंसर। नेक्स्ट इज क्रिएट योर ओन टाइम टेबल, डू नॉट इमिटेट अदर्स। इसका मतलब ये है कि कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, कौन किस टाइम पे पढ़ रहा है, कौन कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, और कौन से फ्रेंड का क्या स्केड्यूल है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट इमिटेट what the other person is doing, बिकॉज अगर तुम एक कॉन्सेप्ट को 1 घंटे में समझ सकते हो और दूसरा बंदा 20 मिनट में समझ सकता है, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुमने भी 20 मिनट में ही करना है। इनसिक्योर हो गए या एंशियस हो गए तुम भी कोशिश करने लग जाओ कि यार मैं तो 20 मिनट में ही करूँगा। एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पेस, सो अंडरस्टैंड एंड इंट्रोस्पेक्ट व्हाट योर पेस इज, ठीक है। जस्ट बिकॉज एक पर्सन 20 मिनट में कर रहा है इसका मतलब ये नहीं उसको ज़्यादा आता है। अगर इससे फ्रेंड की कोई स्ट्रेंथ है तो तुम्हारी भी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी। सो फोकस ऑन दैट। व्हेन टू स्टडी, कुछ लोग दिन में पढ़ सकते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ते हैं। I have always been a day learner. Even though all my friends used to study at night, I used to always study in the day. मेरा सिंपल सा हिसाब था, I could study from morning 10 to evening 10, night 10, but I cannot study from night 10 to morning 10. तो I knew my preferences, I knew my priorities, and I knew myself that I am only going to study in these hours. तो मैं अपना schedule उस according सेट करती थी, irrespective of the fact that my friends are studying at night. नेक्स्ट इज़ हाउ मच टू स्टडी। हो सकता है कोई इंडिविजुअल 4 दिन में 3 सब्जेक्ट्स कवर कर रहा है, बट तुम 4 दिन में 2 ही सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हो, इट्स ओके। हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड पहले लेट्स से अकाउंट्स या फिर कोई भी तुम्हारी स्ट्रीम का सब्जेक्ट है, फिर बिजनेस स्टडीज़ कर रहा है, फिर इकोनॉमिक्स कर रहा है, फिर इंग्लिश कर रहा है, बट यू वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश फर्स्ट, देन यू वॉन्ट टू स्टडी अकाउंट्स, देन यू वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, एंड देन यू वॉन्ट टू स्टडी बिजनेस। दोनों ही स्केड्यूल बिल्कुल सही हैं, दोनों ही स्टेप्स या दोनों ही प्रोसीजर बड़ा बिल्कुल सही है। इट्स दी ओनली डिफरेंसेस, इनकी प्रेफरेंसेस कुछ और होंगी, इनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी और तुम्हारी कुछ और है। सो ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट एंड थिंक कि तुम्हारी प्रेफरेंस, तुम्हारी प्रायोरिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारी पेस क्या है। नेक्स्ट इज फिगर आउट द सब्जेक्ट दैट यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सजेस्टिंग कि जो सब्जेक्ट तुम्हें डिफिकल्ट लगता है ना उसको हमेशा सबसे पहले कर लो, बट आई हैव अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन टू दिस, बिकॉज अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लगता है या फिर तुम्हें एक सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, तो अगर तुम उसको पहले करोगे ना देन यू विल लूज़ योर इंटरेस्ट टू स्टडी। बिकॉज ऑब्वियसली अगर सब्जेक्ट डिफिकल्ट है या इस सब्जेक्ट से तुम्हें डरते हो तो सीधी सी बात है तुम्हारे क्वेश्चंस आइदर तुम्हें समझ नहीं आएंगे या फिर न्यूमेरिकल तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट अपसेट होगे, टेंशन होगी तो फिर तुम और नहीं पढ़ पाओगे तो तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स पीछे रह जाएंगे। सो अगर और जस्ट इन केस तुम डिफ़िकल्ट वाले सब्जेक्ट को सोच रहे हो कि लास्ट में पढ़ लेते हैं, तो वो भी बहुत गलत बात हो जाएगी। बिकॉज अगर तुम पहले 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हो ना तो उन 3 सब्जेक्ट्स को करते टाइम तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि यार ये वाला डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मेरा अभी भी पड़ा है,
ठीक है ना, तो वो दिमाग में घूमता रहेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वट एवर सब्जेक्ट्स यू आर स्टडिंग. सो द बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि हमेशा पहले नंबर पे वो सब्जेक्ट करो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, जो तुम्हें ईजी लगता है. बिकॉज जब तुम एक ईजी सब्जेक्ट या फिर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, अगर तुम वो पढ़ोगे ना तो तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाएगा पढ़ने का, तुम्हारी रिदम बन जाएगी पढ़ने की. बिकॉज यू विल लुक फॉरवर्ड टू स्टडिंग समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग. तो जब तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया, तुम्हारा मूड अच्छा हो गया, तुम्हारा एक मन में तुम्हारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया पढ़ने का, उसके बाद आओ तुम डिफ़िकल्ट वाले पे. बिकॉज इस टाइम तक तुम्हारा मूड प्रिपेयर हो चुका होएगा कि यार ठीक है अब मैंने पढ़ना है. उसके बाद डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट करोगे ना, फिर भी तुम्हारे लिए बहुत ईजी होएगा. सो ऑलवेज़ प्रेफर कि अगर तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट हैं तो कोई भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ना फर्स्ट पे रखो ना फोर्थ पे रखो, मतलब कि लास्ट पे रखो. हमेशा कोशिश करो कि वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तुम मिड वे रखो, ताकि ना ही तुम्हारा इंटरेस्ट लूज़ हो और ना ही तुम्हें एंड तक कोई टेंशन बनी रहे. So these were few tips and tricks regarding how you are going to prepare well for your exams. I have tried to inculcate all the points that I have been following since years, and I hope these points were a help to you as well regarding how to prepare for your exams. So this was the first part of the video. In the next part of the video, that is part 2, I am going to cover the tips and tricks on presentation and time management. Hopefully, these wide variety of tricks regarding presentation and time management will help you in understanding the intricacies regarding how you are going to solve the exam paper And get good marks in your exams. Last but not the least, if you like this video, do hit the like button, as well as do comment your opinions regarding how did you feel about this video, any suggestions, any opinions, anything of that sort. Also share it with your friends, peers, and help them grow, help them learn their tricks and the art of studying well. And most importantly, please hit the subscribe button so that you don't miss out on any important content. Thank you so much. Have a good day. Happy learning.